for making a future in a No, better. no. See, that's good. Whenever we are doing a course, any of the course, the core objective is to make a good future. That's Yes, sir. really, I mean, that's a common objective. But Common any object. specific particular area you want to go, any specific particular area you want to join, that's what I'm asking. Sir, I have to go in a financial with the banking sector and all. Very good, very good, very good. So have you appeared in any of the banking examination till now? Yes, sir. I have preparing for IBPS and SBI clerk Okay, and PO and many more okay. exams as well. So have you given any IBPS till now? Yes, sir. I had almost six exam. I have given Six six exams you exam have almost. given. Yes, sir. Okay, and what are the results? सर पांच छह नंबरों से मैं सेकंड टीयर में रह जाता हूँ. Okay, okay. Not an issue, not an issue because nowadays IBPS has two exams, mains, pre and प्री mains. और मेंस. Yeah, पहले ये नहीं होता था. Earlier it used to be only one exam, हम्म. but now it is two exams. So very good. That's very good. All the best to you. So थैंक यू. let's talk to Mr. Manoj Agarwal. यस सर। Yes, Manoj. आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। Okay. So Manoj, किस कोर्स में एडमिशन लिया आपने? In which course you have taken admission? बीबीए सर। BBA. Okay. यस। What you have done in your school? I mean 12th में क्या था आपके पास? कॉमर्स। Commerce. यस सर। Okay. Okay. So any objective of doing BBA? कि BBA ही करना है, कुछ उसका ऑब्जेक्टिव कुछ सोचा कि किस एरिया में जाना है, कहाँ, या फिर अपना खुद का बिजनेस करना है या कोई पर्टिकुलर जॉब हमें ज्वाइन करना है? सर पर्टिकुलर जॉब। ओके, एनी एरिया, एनी स्पेसिफिक एरिया? फाइनेंस। फाइनेंस. ओके, ओके, वेरी गुड. Right. So who else is there? So Sushmita was there in the last class also. Wait, Somik, yeah. Soma, we have taken your introduction in the last class, I guess. She's not getting. Okay. Sushmita, good morning. Good morning, sir. Okay. In which course you are taking admission, beta? Yes, sir. What, sir? किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो? MBA. MBA. Okay. What is your graduation background? BBM, Bachelor of Business Management. BBM you have done. Very good. Very good. Okay. So any objective of joining MBA? कि किस स्पेशलाइजेशन में जाना है? HR, Human Resources. Human resources. Okay. Very good. Very good. Okay. All right. So there is another one who is Anik Saha. Anik, can you hear me? I think my voice is not reaching to him. That's not an issue. So welcome back to this class. This is a kind of an introductory class for BBA and MBA students. I think आप लोग English की class भी join कर रहे होंगे on Tuesday, if I'm not Yes, wrong. sir. Right? So these are the classes. Actually, these are not the classroom lectures or something. These are the classes to actually give you some idea as well as to make you comfortable with what you are going to do when your actual classes, actual lectures are going to start. So don't take it as a lecture or something. This is kind of an introductory, ice breaking sort of class जहाँ पे हम आपस में बात करके थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं. Just like other people, हमने last class में विनय was there, Soma was there, Sushmita was there, Deep Kumar was there, and apart from these people, I think Anik Saha was also there, and three new people are there. One is Chetan and the second is Manoj. So Chetan and Manoj, what we do in this class, we do some, I mean, any of the topic we take which is related to the management field or something, and we do some basic mathematics also. Like in the last class we have done some data interpretation practice questions.
So we are going to do that today also. But before that, I want to show you one video which talks about the 2008 crisis. Just give me 2 minutes to present it. Namaskar. And yes, meanwhile, if the internet, due to internet connection, if my connection is lost, please be there in the class. I'll join back, right? Because of some small issues, it might happen. So don't think that the class is over. I'll be back if it happens, right? Is this screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. All right. All right. And just let me know अगर आपको इस वीडियो के साउंड की आवाज आ जाए तो first of all let me tell you what it is. This video is being taken from YouTube and this video will talk about the financial crisis 2008. Many of you might have heard about it that in 2008 there was a global financial crisis. एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसको थोड़ा एनिमेशंस के थ्रू इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है. So first, let us watch this video completely. Then we'll discuss what actually if there is any problem to understand. तो हम उसको डिस्कस करते हैं. Then we'll move to the mathematics part. मुझे एक बार बताइए, टेस्ट रन में कर रहा हूँ कि आप लोगों को वॉइस आ रही है? 2008 का सॉरी फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे. 1996 में यूएस में डॉट कॉम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के भाव बहुत तेजी से और आगे 2000 से 2002 के बीच ये डॉट कॉम बूम. सो शुड आई रीस्टार्ट? सबको वॉल्यूम आ रही है इसकी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm just restarting this. Please listen carefully. आप सब अपने आप को म्यूट कर लें और इसको अच्छे से सुने पहले, and then we'll discuss. नमस्कार. तो आज हम 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे. 1996 में यूएस में डॉट कॉम बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और आगे 2000 से 2002 के बीच ये डॉट कॉम बूम बस्ट हो गया. यानी स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगी, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे. साल 2001 में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ 1% के करीब आ चुके थे, तो उस समय स्टॉक मार्केट गिर रहा था, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे और इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखना चाहते थे. तो इन्वेस्टर्स किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे. उस टाइम रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ रहे थे. यूएस गवर्नमेंट भी लोगों को घर खरीदने के लिए एनकरेज कर रही थी. इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम थे, इसलिए लोग लोन यानी कर्ज लेकर घर खरीदना पसंद कर रहे थे. इस तरह घरों की डिमांड बढ़ रही थी और घरों के दाम भी बढ़ रहे थे, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का ध्यान अब यूएस के रियल एस्टेट पर आ गया. रियल एस्टेट के बढ़ रहे रेट्स को देखकर इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएस में घरों की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी और इसलिए रियल एस्टेट के रेट्स भी बढ़ते रहेंगे, जिससे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो रियल एस्टेट में चल रही इस तेजी का फायदा इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी लेना चाहती थी. बैंक्स तो सभी को पता है, बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज, लोन्स ये सब प्रोवाइड करते हैं. वही इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम करती है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को पैसे उठाने में मदद करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कंपनी की मदद करना, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचना और डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन जैसी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एटसेट्रा ये सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है. तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब बैंक से लोन खरीदने लगी और कई सारे लोन्स को कंबाइन करके यानी उनके बंडल्स बनाकर एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाने लगी, जिसका नाम उन्होंने कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन दैट इज सीडीओ रखा था. और इन सीडीओस को इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से रेटिंग दिलवाई. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन सीडीओस को इवैल्यूएट करती थी, यानी उन लोन्स की जांच करती थी और उसके बाद उन सीडीओस को रेटिंग देती थी और फिर वो सीडीओस इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टर्स को बेचते थे. नॉर्मल केस में जब बैंक किसी को हाउसिंग लोन देती है तो बैंक बोरोवर यानी लोन लेने वालों की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है और उनकी इनकम भी वेरीफाई करती है.
हाउसिंग लोन के केस में लोन रिपेमेंट का कालावधि काफी लंबा होता है, इसलिए बैंक हाउसिंग लोन देने से पहले बोरोवर के कई सारी डिटेल्स चेक करती है। वही इस केस में बैंक अपना लोन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच रही थी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स को कंबाइन करके उनके सीडीओस बनाकर उसे इन्वेस्टर्स को बेच रही थी। तो यहाँ पर लोन की रिस्क बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफर कर दी और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वो रिस्क सीडीओ इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनमें से ज्यादातर सीडीओस को ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। ट्रिपल ए रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है। ट्रिपल ए रेटिंग और अच्छे रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टर्स उन सीडीओस पर टूट पड़े। सीडीओस को मिलती हुई डिमांड को देखकर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास और ज्यादा लोन्स की डिमांड करने लगे। पर बैंक्स ऑलरेडी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को लोन दे चुकी थी, तो अब बैंक्स उन लोगों को भी हाउसिंग लोन दे रही थी जो वो लोन चुका पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे लो क्वालिटी के लोन्स को सबप्राइम लोन्स कहते हैं। ज्यादा लोन्स बेचकर इन्वेस्टमेंट बैंक से ज्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में बैंक्स बिना कोई वेरिफिकेशन किए लोन्स बांटे जा रहे थे। तो इन सबप्राइम लोन्स को बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचती थी और इन्वेस्टमेंट बैंक से हजारों सबप्राइम लोन्स को कंबाइन करके उनके सीडीओस बनाकर उन सीडीओस को रेटिंग एजेंसी से ट्रिपल ए रेटिंग दिलाने लगे। लगभग 70% सीडीओस को रेटिंग एजेंसीज ने ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। ट्रिपल ए रेटिंग की वजह से उन सबप्राइम लोन से बने सीडीओस को भी अच्छी डिमांड आने लगी। इस तरह बैंक सबप्राइम लोन्स देती रही और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स के सीडीओस बनाकर उन्हें इन्वेस्टर्स को बेचते रहे। कंट्री वाइड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और अमेरिक्वेस्ट मॉर्गेज कंपनी इन दोनों ने ही करीब $177 बिलियन के सबप्राइम लोन्स दिए थे। साल 2000 से 2007 के बीच इन्वेस्टमेंट बैंक्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सीडीओस बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट में कमा रहे थे। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी। मूडीज, जो कि यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उसका प्रॉफिट 2000 से 2007 के पीरियड में 4 गुना बढ़ा था। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का यह हनीमून पीरियड 2008 की शुरुआत तक ऐसे ही चलता रहा। एआईजी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने सीडीओस पर इंश्योरेंस देना शुरू किया। जैसे कि हमें पता है, इंश्योरेंस लॉसेस से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा पाने के लिए निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको हर महीने या हर साल उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होता है। तो अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी के लॉसेस की भरपाई करके देगी, और अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है तो आपने भरा हुआ प्रीमियम आपका लॉस होगा। तो एआईजी को लग रहा था कि सीडीओस ट्रिपल ए रेटेड है, इसलिए उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए उन्होंने सीडीओस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया और उसका नाम रखा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दैट इज सीडीएस। तो सीडीओ इन्वेस्टर्स लॉसेस से प्रोटेक्शन पाने के लिए सीडीएस खरीद रहे थे। सीडीएस की खास बात ये थी कि जिनके पास सीडीओस नहीं है वो भी सीडीओस पर इंश्योरेंस निकाल सकते थे, यानी सीडीएस खरीद सकते थे। जिन्होंने एआईजी से सीडीएस खरीदे थे उन्हें हर क्वार्टर यानी हर तिमाही में एआईजी को प्रीमियम पे करना होता था, और अगर सीडीओ फेल हो जाते हैं तो एआईजी उन्हें पे करेगी। सीडीएस बेचने पर एआईजी अपने एम्प्लॉइज को बड़े बड़े बोनस दिए जा रही थी, पर एआईजी ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर सीडीओ फेल हो जाते हैं तो उन्हें कितना लॉस होगा। बैंक्स ने दिए हुए ज्यादातर सबप्राइम लोन एडजस्टेबल रेट लोन्स थे, जिनके इंटरेस्ट रेट्स शुरुआत के कुछ सालों के लिए बहुत कम रहते हैं और उसके बाद अचानक बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ज्यादातर सबप्राइम बोरोवर्स को एडजस्टेबल रेट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी और बैंक्स ने भी उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। तो जिन लोगों ने एडजस्टेबल रेट्स पर सबप्राइम लोन्स लिए थे उन्हें शुरुआत में तो बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ा, पर कुछ 3-4 साल बाद यानी ज्यादातर केसेस में 2007 से उन्होंने लिए हुए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारे बोरोवर्स को इन एडजस्टेबल रेट लोन्स की कोई आइडिया नहीं थी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जिन्होंने सबप्राइम लोन लिया था उन्हें यह ज्यादा इंटरेस्ट पे करना बहुत मुश्किल जाने लगा और उन्होंने लोन डिफॉल्ट करना शुरू किया, यानी लोन चुकाना बंद कर दिया। तो फिर बैंक्स उन घरों को बेचकर अपने पैसे रिकवर करने लगी, यानी लोन के पैसे उन घरों को बेचकर वसूल करने लगी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बैंक्स ने बोरोवर्स की ठीक से जांच किए बिना और उनकी कैपेबिलिटी को देखे बिना उन्हें लोन दिया था। ज्यादातर बोरोवर्स के पास तो रेगुलर इनकम सोर्स भी नहीं था, फिर भी उन्हें बैंक ने हाउसिंग लोन दिया था। यहाँ पर बैंक्स ने एक और गलती की थी। बोरोवर्स घर खरीदने के लिए लगभग पूरा पैसा बैंक से लोन ले रहे थे और खुद की जेब से कुछ भी नहीं पे कर रहे थे। 2005 में करीब 50% बोरोवर्स ने घर खरीदने के लिए खुद की जेब से कुछ भी पे नहीं किया था। घर खरीदने के लिए उन्होंने पूरा पैसा बैंक से लिया था, जबकि नॉर्मल केस में घर खरीदने के लिए बोरोवर को कुछ पैसा खुद की जेब से देना होता है और बाकी पैसा बैंक लोन देती है। तो यहाँ पर घर खरीदने के लिए बोरोवर्स ने खुद का पैसा नहीं लगाया था।
तो अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डिफॉल्ट करने वालों की यानी लोन ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। तो बैंक्स उन सारे घरों को नीलाम करके उन्हें बेचने लगे। अब इतने सारे डिफॉल्ट्स के कारण बैंक्स ने बहुत सारे घरों को नीलाम करने के लिए निकाला, पर अब 2007-8 तक इंटरेस्ट रेट्स भी 5% के लेवल पर आ चुके थे और ऑलरेडी बैंक्स बहुत सारे लोगों को लोन दे चुकी थी और इसलिए बैंक्स को उन घरों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से घरों के दाम तेजी से गिरने लगे और गिरकर बहुत कम हो गए। तो जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था, उनका लोन अब उनके घर के भाव से बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने जब घर खरीदे थे तब घरों के दाम बहुत ज्यादा थे और अब वो काफी गिर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 50 लाख का घर लोन लेकर खरीदा है और अब उस घर की वैल्यू 30 से 35 लाख हो गई है, तो वो बोरोवर तो यही सोचेगा कि 30-35 लाख के घर के लिए मैं उससे ज्यादा अमाउंट का लोन क्यों चुकाऊं। इसलिए अब सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे। इन डिफॉल्ट्स के चलते बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया और उनका कामकाज रुक गया। इन डिफॉल्ट्स की वजह से सीडीओस की वैल्यू अब जीरो हो गई और जिन इन्वेस्टर्स ने सीडीओस खरीदे थे उनका पूरा पैसा चला गया। जिन इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स को सबप्राइम लोन की पूरी रियलिटी पता थी, उन्हें पता था कि सीडीओस कभी भी फेल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में सीडीएस यानी सीडीओस पर इंश्योरेंस खरीदे थे और जब सीडीओस फेल हो गए तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। एआईजी जिसने सीडीओस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, उसे करीब $99 बिलियन के लॉसेस हुए। एआईजी बहुत बड़ी कंपनी थी, इसलिए क्राइसिस को और ज्यादा फैलने से बचाने के लिए और एआईजी के एम्प्लॉयज की जॉब बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एआईजी को बेल आउट किया, यानी गवर्नमेंट ने खुद एआईजी में करीब $85 बिलियन डालकर उसे बचा लिया। इन सबके चलते लोगों ने सीडीओस खरीदना बंद कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिन्होंने बैंक से लोन खरीदकर सीडीओस बनाए थे, उनके पास बहुत सारे सीडीओस पड़े थे और कोई भी अब सीडीओस खरीदना नहीं चाहता था। तो उन सीडीओस के लॉसेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को झेलने पड़े और यूएस के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स घुटनों पर आ गई। लीमन ब्रदर्स, जो कि यूएस के वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी, वो बैंकरप्ट हो गई और लीमन ब्रदर्स के करीब 25,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली गई। बेयर स्टर्न्स को जेपी मॉर्गन चेस ने खरीद लिया और मेरिल लिंच को बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदा। इस क्राइसिस में बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करीब $450 बिलियन का नुकसान हुआ था। यहाँ पर खास बात ये भी थी कि सीडीओस और सीडीएस इन पर कोई रेगुलेशन नहीं था जो इन सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर नजर रखे और उन्हें कंट्रोल में रखे। फेडरल रिजर्व के पास मॉर्गेजेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी थी, पर तब के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर एलन ग्रीन्सपैन ने उसे रेगुलेट करने से मना कर दिया था। तो इस क्राइसिस के कारण क्रेडिट क्रंच पैदा होने लगा। लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बहुत सारे बिजनेसेस उन्हें कैपिटल या लोन ना मिलने की वजह से बंद हो रहे थे। यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह रुक गई। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्लोबल ट्रेड्स पर भी इस रिसेशन का असर होने लगा। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज के दौर में अगर कोई बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम में फंसती है तो उसका असर उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी सारी इकोनॉमीज पर पड़ता है। 2008 का यह फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसका असर लगभग पूरी दुनिया पर पड़ा था और ग्लोबल रिसेशन आ गया था। इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बैंकरप्ट हो गई थी। 2005 में जब मिस्टर रघुराम राजन आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, तब उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को अपने रिसर्च पेपर में प्रेडिक्ट किया था, जिस पर कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था। अगर आपको यह 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से समझ में आ गया है तो जरूर यस कुछ समझ आया? Yes, sir. यस तो कैन एनीवन समराइज थोड़ा बहुत कि क्या समझ आया 2008 के क्राइसिस के बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी इस पूरे रिसेशन के रीजन के पीछे? Which is the biggest mistake which the American banks have done? सर yes Soma. हाँ, जो मुझे लगा कि जो ईएमआई जो मैंने बैंक जो कस्टमर को दे रहे थे, जो ईएमआई नहीं दे पा रहा है उस कस्टमर को भी वो मैंने बैंक लोन दे रहे थे, तो वो एक बिगेस्ट आई थिंक प्रॉब्लम था। अपने इंडिया में बैंक कस्टमर का बैकग्राउंड नहीं देख रहा था, वो जो दे नहीं सकते उसको भी लोन दे रहा था, जो कि वो फ्यूचर में जाके लॉस खा गया।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। इसका सर मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक को पहले उन लोगों का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि वो लोन चुका सकता है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स सबने वीडियो ढंग से देखा है। दैट्स आई मीन गुड टू हियर। यस, आई मीन सोमा एंड अनिक हैज सेड द सेम थिंग, बट द कहने का तरीका अलग था। The reason is the biggest reason which because of which this crisis has happened, because the banks ने एक बेसिक चीज जो आप अपने इंडिया में बहुत ज्यादा सुनते होंगे, दैट इज KYC, नो योर कस्टमर। That KYC norms are being actually ignored by the banks. Banks ने पूरी तरह से उन norms को ignore कर दिया, and without checking the financial background, जब भी आप किसी लोन के लिए जाते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर योर हायर स्टडीज एंड आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कहीं कर रहे होंगे या किया होगा पहले, सो इन दैट केस बैंक आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। थोड़ा बहुत ऐसा कस्टमर प्रॉब्लम होती है कि मतलब लोन के लिए इतनी क्या जान पहचान कर रहे हैं, इतना क्या टेस्ट कर रहे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, हम कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट यू विल रन अवे, इट इज अबाउट कि जितना ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ मैं आपको लोन दूंगा, उतना कम रिस्क पे ये लोन रहेगा। आप लोगों ने NPA का नाम सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। Right now, in Indian banks, especially the public sector banks, are facing this huge problem of NPA, non-performing asset। Technically बहुत अलग-अलग चीजें होती है, but एक general words में समझे तो NPA is basically वो लोन जो बैंक ने दिया लेकिन वो वापस नहीं आया। बैंक has given the loan to us, suppose मुझे लोन दिया, मैंने वो लोन बैंक को वापस रिटर्न नहीं किया, EMI अपनी नहीं भरी, and I said कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, I cannot give the EMIs. So that particular loan, वो लोन जो है वो NPA में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज बैंक, आप लोग में से काफी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटी। तो बैंक के केस में एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, कोई समझा पाएगा? जनरल वर्ड्स में, नॉट टेक्निकल कॉमर्स वर्ड्स, but what is asset and what is liability for a bank? सर लायबिलिटी वो बैंक के लिए वो होता है कि जो जिसको लोन देता है और वो वापस नहीं आता, और एसेट वो होता है कि जिस कस्टमर को लोन मिला बट वो टाइम में वो वापस कर देता है, एंड उसके कस्टमर के साथ एक रिलेशन भी अच्छा हो जाता है, वही एसेट है। Okay, Anik sir, your answer is partially right. 50% आपने चीज सही बोली, सर एसेट तो okay, yes Vinay। सर एसेट तो वो है जो हमने फॉरेन कंट्रीज में जो इन्वेस्ट करके हमने कर रखा है, जैसे बैंक के केस में बताना, बैंक के हाँ केस में जी सर बैंक के केस में यस यस। सर जो बैंक ने RBI ने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो वो उसके लिए एसेट ही है इन्वेस्ट, या उसने कोई गोल्ड वगैरह कुछ खरीद रखे हैं। नहीं, forget about RBI, just talk about a normal बैंक। एक छोटा बैंक कोई भी अपना, जिसमें आपने अकाउंट अपना ओपन कर रखा है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, उस बैंक के लिए एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है? सर एसेट तो वो है जो सर ये लोन्स के प्रोवाइड में, मतलब लोन्स का जो इंटरेस्ट आता है वो इनका। ओके, लोन इज द एसेट। यस, लोन इज द एसेट ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम। हाँ। एंड व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी sir, don't know liability. Don't know about liability. Okay, anyone else? Yes, Chetan, can you add something? Thus, the customer has opened the account in the bank with the saving account, and many more accounts are recurring account, current account. The bank is given to the customer is interest. Interest is a liability of the bank, which is paid by the bank to the customer. That is liability.
Okay. And what is the asset? Asset is what the customer is mm, having a loan with the bank Hmm. with we can say that like a mortgage loan and many more loans. That is asset. That is asset to the bank. Okay. Okay. Great. Good. Manoj, can you, I mean, add something else, or you are agree with the answers received? No, sir. I think, yeah. Okay. So basically, see, I am not a pure commerce student. I've done my graduation in science, and then I've done my MBA in finance. So I'll not go into the details of asset and liability. But again, as I said, the in the general terms, the asset and liability are something. Asset is something from which I earn money. I get some revenue. I get some money. ये एक जनरल मैं अंडरस्टैंडिंग के तौर पे बात कर रहा हूँ, जो एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी समझ सकता है. And liability is something which I'll have to pay, which takes money out of me, out of my company, out of my business. So when we talk in terms of bank में, जैसा कि चेतन ने बताया, चेतन ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया इसका, दैट बैंक में जो भी आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, वॉट एवर इट इज, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इज एक्चुअली द लाइबिलिटी फॉर द बैंक. अब देखने में लगेगा कि सर पैसा अगर आया है, इफ द मनी इज कमिंग टू द बैंक, व्हाई इट इज लाइबिलिटी? बिकॉज दैट मनी इज नॉट बिलोंग टू द बैंक. दैट मनी इज समथिंग व्हिच बैंक विल हैव टू रिटर्न. ठीक है, तो इसलिए दैट पर्टिकुलर मनी, जो कि एक सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, जो एक फिक्स डिपॉजिट, आरडी, व्हाटएवर इट इज, जिस भी फॉर्म में कस्टमर अपना बैंक में जमा करता है, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज द लाइबिलिटी फॉर द बैंक. नाउ what is asset? Asset for a bank is the loan which it has given to the different customers. बैंक लोन कहां से देता है? वही तो पैसा जो कस्टमर्स ने जमा किया है, जो कस्टमर्स ने, जो आपने, मैंने अपना जो अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसी पैसे से तो निकाल करके बैंक लोन देता है. और उस लोन का इंटरेस्ट और ये आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वही तो बैंक की इनकम होती है, जिससे वो अपने सारे खर्चे निकालता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक में 1 लाख रुपए आपने जमा कराए, सपोज मनोज ने 1 लाख रुपीस बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया. नाउ ही हैज डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीस. ये 1 लाख रुपए जो है वो लाइबिलिटी है बैंक के लिए. नाउ दिस 1 लाख रुपीस हैज बीन टेकन एज अ लोन फ्रॉम द बैंक टू मी. मैंने वो 1 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया. नाउ मनोज ने जो 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किए थे, उस पे बैंक ने उनको कहा कि आई विल गिव यू 4% इंटरेस्ट ऑन दिस 1 लाख रुपीस. 4% इंटरेस्ट आपको मिलेगा. दैट 4% इंटरेस्ट, वो जो 4% इंटरेस्ट है, वो लाइबिलिटी है, वो बैंक को देना ही है. मनोज के अकाउंट में ऐड होगा ही होगा, क्वार्टरली, मंथली, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स, वो वहां ऐड होगा. एंड दैट पर्सनल लोन जो मैंने बैंक से 1 लाख रुपीस का लिया है, बैंक इज चार्जिंग, लेट सपोज अराउंड 10% ऑन दैट. तो 10% इंटरेस्ट बैंक मुझसे ले रहा है, और उस 10% में से 4% मनोज को दे रहा है. तो ये जो 10 और 4 का जो डिफरेंस है ना, 6%, दैट 6% इज एक्चुअली द इनकम, नॉट प्रॉफिट, इनकम फॉर द बैंक. अब इसमें से बैंक अपने सारे खर्चे निकालेगा, एम्प्लॉयज की इनकम, एम्प्लॉयज की सैलरी निकालेगा, अपनी ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस है, अपनी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर बीन इनकर्ड. उसके बाद में जो बचता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है. नाउ व्हाई दिस एनपीए इज देयर? एनपीए, फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो एसेट मेरे लिए इनकम नहीं ला रहा है. सो जो भी लोन बैंक ने दिया, सपोज बैंक ने 100 करोड़ का लोन बांट दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें से 20 करोड़ ऐसा है जो वापस नहीं आया, तो बैंक के लिए ये 20 करोड़ जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया. नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बैंक में जितना पैसा आपने जमा कर रखा है, वो तो बैंक को आज नहीं तो कल, आपको जब भी आप मांगोगे वो पैसा निकाल कर उसको देना है. बट जो ये 20 करोड़ का लोन डूब गया, दैट्स अ प्योर लॉस टू द बैंक.
इसलिए जितने भी ये इंक्रीजिंग एनपीएस हैं इनको सॉल्व करने के लिए कई बार बैंक को जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अभी आप रिसेंटली देख लिए होंगे, देयर आर सो मेनी मर्जर्स आर गोइंग ऑन, 2-3 बैंक्स को मिला करके एक कर दिया। लेटेस्ट मर्जर अभी हुआ है, लाइक आई थिंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड टू अदर बैंक्स आर मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के साथ में उनका मर्जर हो गया है। और जितनी भी ब्रांचेस ये आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इन सब की देखेंगे उन पे अब पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लग गया है। तो इस तरह से व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि जो अपने यहाँ 20-25 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करके 4, 5, 6, 7 तक ले आओ, सो दैट ये जो एनपीए का इशू है ये सॉल्व हो पाए। बिकॉज व्हेन यू चेक अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए और अदर कंट्रीज, वहां पे इतने ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स नहीं है। देयर आर आई मीन स्मॉल नंबर ऑफ बैंक्स। तो क्या होता है कि उनका जो वर्किंग पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ जस्ट लाइक आपने सुना होगा एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, राइट। ये सब जो है धीरे धीरे मर्ज हो गए। नाउ देयर इज वन एसबीआई, नाउ देयर इज नो एसबीबीजे, देयर इज नो एसबीएच, देयर इज नो एसबीटी, नाउ देयर इज ओनली वन बैंक एसबीआई। सो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी बैंक्स जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इनमें बाकी दूसरे बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है। द ओनली रीजन इज दैट जस्ट टू improve the performance of the banking sector. Getting my point? Now coming back to this topic of crisis 2008, simple words में समझते हैं। सिंपल वर्ड्स इन द सेंस, जब लोन बांटे तो उस लोन को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम स्टार्टिंग में तो इन्होंने कस्टमर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए और उस लोन के बेसिस पे कुछ सिक्योरिटी बना करके उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जब इन सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर इन्होंने ये नहीं देखा दैट द कस्टमर्स आर एबल टू पे द लोन और नॉट, कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन लोन देने लायक है भी या नहीं। और without checking the financial background and income statements and all, they have started distributing the loan to the customers. Now those customers, उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, उन्होंने भी लोन आराम से ले लिया। क्योंकि जब सपोज इफ अ पर्सन इज नॉट कैपेबल टू टेक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक और अचानक से बैंक उसको बोल दे कि आप तो 25 लाख रुपए का लोन ले लो और आप मकान खरीद लो, हाउसिंग लोन हैज बीन ऑफर्ड टू देम, तो उसने ले लिया कि ठीक है मेरी तो कैपेसिटी है नहीं बट आप दे रहे हो तो ठीक है ले लेते हैं। नाउ धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा और एक होता है इंटरेस्ट रेट एक होती है फिक्स और एक होती है फ्लोटिंग। तो धीरे धीरे फिर बाद में बैंक्स ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट जब कस्टमर को लोन दिया था तब उसको बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट आपके यहाँ सपोज 2% होगी, यानी 2% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सडनली उसको इन्होंने बढ़ा करके 10% कर दिया फॉर एग्जाम्पल। नाउ जो कस्टमर 2% इंटरेस्ट भी देने के लिए कैपेबल नहीं था, अचानक से बैंक ने उनको कहा कि आप 10% इंटरेस्ट पे करिए। कस्टमर फाइनेंशियली वीक था, दैट कस्टमर हैज सेड दैट आई डोंट हैव मनी एट ऑल। तो अब उस केस में बैंक ने क्या कहा, ठीक है आप ईएमआई नहीं दोगे तो आपका घर हम ले लेंगे, बिकॉज वो घर मॉर्गेज किया हुआ है, वो घर के बेसिस पे आपको लोन दिया गया था। कस्टमर ने कहा कि ठीक है मेरा तरफ से 1 रुपया भी नहीं लगा। नाउ यहाँ पे भी एक पॉइंट आया जो आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखेंगे। इन इंडिया व्हेनेवर यू टेक अ लोन, स्पेशली अ हाउसिंग लोन, आपको 100% फाइनेंसिंग कभी नहीं दी जाती। आप जैसे आपने कहा सपोज 50 लाख रुपीस का मकान है और आप चाहो कि 50 लाख रुपीस टोटली आपको फाइनेंस हो जाए, नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट इज जनरली 80%। अगर 50 लाख का मकान आप लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे उसमें। इसके पीछे सिर्फ एक बहुत अलग रीजन हो सकता है टेक्निकली, लेकिन जनरल वर्ड्स में समझे, देयर इज वन बिग रीजन दैट व्हेनेवर आई पुट माय मनी इनटू समथिंग ना, मैं उसको इजीली डिफॉल्ट नहीं होने दूंगा, मैं उसको इजीली जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे अमेरिका में बैंक्स ने एक बड़ी गलती ये भी करी, दे हैव नॉट आस्क्ड द कस्टमर्स टू पुट देयर मनी इनटू द हाउस। उन्होंने कस्टमर्स को ये नहीं कहा कि आप अपनी तरफ से भी इसमें पैसा डालिए, मतलब 100% लोन हैज बीन गिवन टू देम। अगर 50 मकान है तो 50 लाख का पूरा लोन दे दिया उन्होंने।
तो जब कस्टमर के पास में बैंक के एम्प्लॉयज गए कि सर आप अपना ईएमआई टाइम पे नहीं कर रहे हैं, प्लीज पे योर ईएमआई, कस्टमर ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। देन बैंक ने कहा ठीक है, फिर घर खाली कर दो। उसने कहा ठीक है ले लो, मेरी तरफ से क्या है, मैं तो यहाँ पे एक तरह से एक 1.5 साल 2 साल 3 साल जो भी है, मैं तो आराम से रह लिया, मेरी जेब से कुछ पैसा इसमें लगा नहीं है, जितनी भी ईएमआई अब तक मैंने दी है वो एक एज अ रेंट मैं समझ लूंगा और मैं इस घर को खाली कर दूंगा। कस्टमर्स ने घर छोड़ना शुरू कर दिया। अब जब बैंक ने बार बार हर कस्टमर से यही कहा कि इधर यू पे योर ईएमआई और यू लीव द हाउस, कस्टमर्स ने हाउस छोड़ना शुरू कर दिया। अब एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आज की तारीख में गोल्ड इतना महंगा क्यों है, उसका रीजन एक है कि ये इतना ज्यादा सप्लाई इसकी नहीं है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अगर मैं ये कर दूं कि गोल्ड बहुत ज्यादा है, हर किसी के घर में जमीन में से निकल रहा है, आप 10 फुट का खड्डा खोदिए और गोल्ड वहां से आपको निकल के आ जाएगा, आपको लगता है गोल्ड का प्राइस इतना रहेगा? नहीं, किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड होती है उसकी अवेलेबिलिटी से। तो जब बैंक के पास में इतने सारे मकान इकट्ठे हो गए, ऑक्शन में इतने सारे मकान हो गए, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू गिर गई। 50 लाख का मकान 5 लाख रुपीस में आ गया। नाउ जब इतना ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर गिर गया, मकान की प्राइसेस, बिल्डिंग की प्राइसेस, फ्लैट्स की प्राइसेस 50 लाख रुपीस से सीधे 25 लाख रुपीस पे आ गई, तो जो कस्टमर ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि भाई जब मेरे मकान की वैल्यू 25 लाख ही रह गई है तो मैं 50 लाख का लोन पे क्यों करूं? Why should I pay 50 lakh rupees for something which is only of 25 lakh rupees? तो वो जो कस्टमर जो डिफॉल्टर्स नहीं थे उन्होंने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज प्राइसेस डाउन हो गई। अब धीरे धीरे बैंक्स पे बर्डन आ गया, और इन लोन के बेसिस पे जो सिक्योरिटी बना करके इन्वेस्टमेंट बैंक बेच रहे थे और जिन कस्टमर्स को बेची थी उन कस्टमर्स की वो वैल्यू गिरती गई, और वो इन्वेस्टर्स ने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे सारे सिस्टम में मंदी आ गई, क्योंकि बैंक के पास में पैसा नहीं आ रहा था, बैंक के पास में बहुत सारे हाउसेस पड़े थे जिनकी वैल्यू ऑफ मार्केट में 50% रह गई थी, एंड इसका लॉस ये हुआ कि अच्छे खासे बैंक्स जो है वो डिफॉल्ट हो गए। कुछ जो बड़े इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने उसको, अब इंश्योरेंस कंपनी क्यों फंसी? इंश्योरेंस कंपनी इसलिए फंसी क्योंकि सपोज देयर इज अ कार, एक कार है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस थी, मैंने उस पर आपको इंश्योरेंस दे दिया कि इस कार का इंश्योरेंस मैं देता हूं आपको, और आपको जो है हर साल 40,000 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और इस गाड़ी को जो भी हुआ वो नुकसान मैं उठाऊंगा। ठीक है, अचानक से वो 50 लाख रुपीस की कार की वैल्यू 5 लाख रुपीस हो गई, तो कस्टमर वो 40,000 का पेमेंट क्यों करेगा मुझे? एंड वो कस्टमर वो 40,000 का पेमेंट मुझे नहीं करेगा प्रीमियम, तो मैं एज अ इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस नहीं दूंगा और मेरी इंश्योरेंस कंपनी करप्शन में आ जाएगी, बैंकरप्सी में फंस जाएगी। इस तरह से बेटा ये टोटल प्रॉब्लम यूएसए में हुई, वहां पे स्टार्ट हुई, एंड सिंस आपको भी पता है द यूएस इकोनॉमी इज द लिंक बिटवीन ऑल अदर डिफरेंट इकोनॉमीज, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी इकोनॉमी हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यूएसए की इकोनॉमी। So overall this 2008 crisis happened like this। ठीक है, ये वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल है, अगर आप वापस देखना चाहें यू कैन वॉच इट, फिनोवेशंस डालिए और वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वेरी गुड वीडियो इट इज, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। व्हाई आई हैव डिस्कस दिस वीडियो विद यू पीपल, बिकॉज टुडे और टुमारो यू आर गोइंग इनटू द बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड, चाहे आप एचआर से करें, मार्केटिंग से करें, बट जो थोड़ा बहुत ये क्राइसिस वगैरह और ये सब क्यों हुए, कैसे हुए, इनका बेसिक रीजन आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हर किसी को पता हो जरूरी नहीं है, बट इफ समवन आस्क दैट व्हाट कैन यू से अबाउट 2008 क्राइसिस, you should be able to speak upon it for at least 2-3 minutes। so आपके पास में उतना कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज द रीजन फॉर दिस। आई होप सबको समझ में आया होगा और सब किसी को ऐसा नहीं लगा होगा क्या बोर कर दिया सर वीडियो दिखा के। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नो एंड व्हिच इज फॉर आई मीन गुड। Yes. Anyone has any question? Yes, yes, Suma. सर ये जो मैंने प्रॉब्लम हुआ था, इसके बाद क्या बैंक में बहुत से चेंजेस हुए? मैंने अभी तो ईएमआई में अभी तो 10% देना ही पड़ता है। सपोज 20 लाख का आप अगर लोन लिया तो 10% 15% ऐसा कुछ देना पड़ता है। पूरा वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड सैलरी के ऊपर भी वेरिफिकेशन होता है पूरा। तो ये चेंजेस का आफ्टर ये मैंने प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है क्या?
एग्जैक्टली आफ्टर 2008 बैंक्स का ऑपरेट करने का तरीका, सी इंडिया में आपने अभी तक अभी अभी जितनी भी एज आपकी हुई है, आपने सुना कभी कोई बैंक डूब गया? कभी सुना क्या आपने? क्या डूब गया? इंडिया में कभी Recently, we आपने सुना heard about कोई बैंक Yes डूबा Bank. हो, बैंक करप्ट हो गया हो या डूब गया हो? Recently heard about Yes Bank. सॉरी, Heard about Yes Bank recently. यस बैंक डूबा? नहीं बंद डूबा, हुआ? लेकिन ऐसा ऐसा था कि डूबेगा। नहीं था, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट डूबा अभी तक नहीं नहीं नहीं, डूबा, वो डूब नहीं No, सकता। sir. नहीं डूबा। उसके एम्प्लॉयज की किसी की नौकरी गई अभी तक? नहीं गई। नहीं। किसी भी कस्टमर का पैसा डूबा? नहीं डूबा। एंड आई एम गिव यू गारंटी, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। यस, प्रॉब्लम मैनेजमेंट में होती है, लोग कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लोन्स वगैरह बांटते नहीं है, मानी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था किसी बैंक में प्रॉब्लम हुई क्या। माय क्वेश्चन इज कि कोई इंडियन बैंक डूबा हो, ये आपने सुना है क्या? नहीं सुना No, होगा, sir. राइट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आरबीआई के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइक अ फादर ऑफ ऑल दीज बैंक्स। ये जितने भी बैंक्स इंडिया में काम करते हैं, इन सबका रेगुलेटर है आरबीआई। एंड आरबीआई के नॉर्म्स बैंकिंग को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने सॉलिड है कि कोई भी बैंक उनको फॉलो किए बिना काम नहीं कर सकता, और अगर उनको फॉलो करेगा तो डूब नहीं सकता। दोनों चीजें हैं। इफ यू वांट टू ओपन अ बैंक इन इंडिया, आपको ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बैंक ओपन नहीं कर सकते, और अगर इनको फॉलो करते हैं तो आप डूबोगे नहीं। दैट इज द रीजन। सो लाइक जस्ट लाइक सोमा सेड कि सर इस क्राइसिस के बाद में चेंजेस आए। यस, आउटसाइड इंडिया जो बैंक्स वगैरह थे वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए नो योर कस्टमर नॉर्म्स पे, केवाईसी नॉर्म्स पे। सिमिलरली इंडिया में भी बैंक्स अब बिना मतलब अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट में कोई 1% भी गड़बड़ दिखती है, दे विल नॉट गिव यू लोन। हो सकता है पोस्टपोन कर दें। आज आपका लोन सैंक्शन होने वाला था और आज सुबह ही उनको कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया which is something which is creating some negative impression about your financial image, बैंक आपका लोन अभी स्टॉप कर देगा। हाँ, ये मैंने फेस किया है, ये मैं जानती हूँ। ये चीज इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया बैंक के बारे में तो नहीं जानती। आपने जो बोला उसके बाद मैं अभी इंडियन बैंक के बारे में जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सैलरी के ऊपर जज किया जाता है, क्या लोन के पर्सनल हो कि ये हो, वो जानती हूँ मैं चीज। Yeah, beta, there is one organization, there is one term which is CIBIL. I am again repeating, CIBIL, CIBIL बोलते हैं इसको। The full form for this is Credit Information Bureau of India Limited. ये क्या हाँ, है? आपने लोन लिया है कि नहीं वो जज करता है कि नहीं, पहले प्रीवियस लोन का क्या आपका स्टेटस है वो जज करता है। एग्जैक्टली। ये सिबिल स्कोर हम सबका होता है। अब आप कहेंगे सर मेरा तो सिबिल स्कोर कैसे हो सकता है, मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया। वेरी गुड। द डे जिस भी दिन आपने एक क्रेडिट कार्ड अपने लिए बनवा लिया या आपने कोई छोटा सा भी लोन ले लिया, सपोज एक बाइक खरीदने के लिए आपने 50,000 का लोन ले लिया, आपका सिबिल क्रिएट हो गया। अब उस लोन को की ईएमआई पे करने में अगर आपने कोई प्रॉब्लम करी, लाइक आपने 1-2 ईएमआई मिस कर दी या कुछ रीजन से आप पे नहीं कर पाए, आपका ये सिबिल स्कोर वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा नेगेटिव। सिबिल स्कोर आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि एक बार कम हो गया तो आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, बाय द टाइम इट विल गेट इंप्रूव। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर, अलग अलग बैंक का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर उस स्टैंडर्ड से नीचे है, बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो सिबिल स्कोर आपकी हिस्ट्री बताता है। जैसे हम किसी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपकी मार्कशीट्स वगैरह चेक होती है, जस्ट टू चेक कि आप अपने एकेडमिक्स में कितने अच्छे थे, क्या था क्या नहीं था। उसी तरह से लोन देने से पहले आपका ये सिबिल का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। हर कोई अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकता है, बहुत इजी है, गूगल पे डालेंगे हर कोई चेक कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया हुआ हो या आपने कोई क्रेडिट कार्ड अपने नाम से बना रखा हो तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाता है। सर अगर ये सिविल का जो स्कोर है वो अगर नीचे रहा तो मुझे फ्यूचर में तो लोन मिलने तो मुश्किल होगा। इजीली नहीं मिलेगा,
क्योंकि ये जो Yes, sir. नेगेटिव सिविल स्कोर है ये आपके बारे में ये बताएगा कि मिस्टर सो एंड सो ने इस टाइम पे इस लोन के अंदर ये डिफॉल्ट किया था, इन्होंने ईएमआई 5 महीने तक नहीं चुकाई या 10 महीने तक नहीं चुकाई, वॉट एवर इट इज, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर सिविल स्कोर। और उस बेसिस पे बैंक कहेगा कि सर आपकी हिस्ट्री थोड़ी गड़बड़ आ रही है, हमारे यहाँ से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो सकता, वो नहीं Okay, देगा, sir. राइट। Okay, sir. तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ गुड सिविल स्कोर। मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक तो इतना लोन कभी मत लो जिसको हम पे नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, व्हेनेवर यू यूज अ क्रेडिट कार्ड ऑलवेज रिमेंबर इसके पेमेंट में एक दिन की डिले भी नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड इज समथिंग जिसको यूज करना हर किसी को अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज आज शॉपिंग करो 45 डेज तक तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर 46th डे हो गया ना बेटा तो सिविल स्कोर इतना नेगेटिवली अफेक्ट होगा कि एक तो बहुत ज्यादा पेनल्टी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप पे इम्पोज कर दिया जाएगा। वो तो एक अलग चीज है, वो तो पे करना ही है, नहीं तो लीगल एक्शंस होंगे, सब कुछ होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिविल स्कोर, ये जो सिविल स्कोर है ये इतना अफेक्ट हो जाएगा कि आगे ना तो कोई नया क्रेडिट कार्ड बन पाएगा, पहली चीज, ना सर ही ये भी कैंसिल हो सकता है। मतलब मेरा एक दोस्त का हुआ था, उसका सिविल स्कोर इतना डाउन हो गया था कि उसका जो क्रेडिट कार्ड था वही कैंसिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज किसी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, सपोज जनरली आजकल कोई भी बैंक हो वो डायरेक्टली आपको 1 लाख 2 लाख लिमिट का क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। स्टार्टिंग में इट विल गिव यू अ क्रेडिट कार्ड ऑफ सपोज 30,000 लिमिट। वो 30,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड विल बी देयर विद यू। अब उस 30,000 लिमिट के क्रेडिट कार्ड को आपने साल भर तक यूज किया और टाइम पे उसका बिल पे करते रहे, तो फिर बैंक ऑटोमेटिकली आपको ऑफर करेगा कि सर आपकी लिमिट को 30,000 से बढ़ा करके 50,000 कर देता है या 60,000 कर देता है। वो हो गया। अब सपोज आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया 1 लाख रुपीज तक की लिमिट हो गई, अचानक से आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक कोई कंटिन्यू थोड़ी करेगा। इट विल से कि सर ये पेमेंट आपका है और अब आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया जाता है, आगे आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। एंड बेटा with a bad civil score you cannot survive nowadays। भले ही आप किसी भी इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हो, whether your annual income is 5 lakh or 50 lakh rupees, you need some sort of loan at some point of time। चाहे वो लोन आपको बिजनेस के लिए लेना हो सकता है, चाहे वो लोन आपको हाउस खरीदने के लिए हो सकता है, whatever type of is। so लर्निंग फ्रॉम दिस क्लास इज दिस कि हमें हमारा सिविल स्कोर कभी नहीं बिगाड़ना है। और वो बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन है जो आप लोगों की एज में लोग होते हैं, स्पेशली उनको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, उनको लगता है वाओ मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है और मैं 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ। ये जो फीलिंग जब आती है कस्टमर के माइंड में, यहीं से सिविल स्कोर खराब होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यू बिकॉज योर ऑलवेज रिमेंबर आपकी सैलरी से ज्यादा लिमिट होती है आपके क्रेडिट कार्ड की। Suppose monthly salary is 50,000 but your credit card limit would be somewhere around 90,000 or 1 lakh rupees। अब अगर एक महीने में आपने 1 लाख रुपीस की शॉपिंग तो कर ली उसको यूज करके, बट आपकी इस महीने जो सैलरी आएगी दैट इज ओनली 50,000, तो बचा हुआ 50,000 या तो ईएमआई में कन्वर्ट करा लो जिसपे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो ईएमआई भरते भरते आपको 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे, या फिर अगर 50,000 की इनकम है, भले ही 1 लाख रुपीस की क्रेडिट लिमिट हो, आप उसको 30-40,000 तक ही यूज करें। वाई आई एम सेइंग 30-40,000? अब बात आती है यहाँ पे वही जो 80% 20% जो अभी सोमा ने कहा कि पूरा लोन नहीं मिलता, उसका रीजन है व्हेनेवर बैंक एनालाइज योर प्रोफाइल टू गिव अ लोन, ईएमआई बनाने से पहले बैंक एक चीज एनालाइज करता है कि इनके पास में, जैसे वो आपसे पूछता है आर यू मैरिड, आप कहते हैं यस आई एम मैरिड, do you have I have kids, आप कहो तो yes I have 2 kids। so बैंक will analyze कि इस पर्सन के पास में हर महीने इतना पैसा बचना चाहिए जिससे ये अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर ले। राशन की नीड हो गई, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, जो भी है। तो इसीलिए बैंक जो है आपको पूरा लोन नहीं देगा क्योंकि उसकी ईएमआई ज्यादा होगी। और कई बार होता है आपका लोन एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटीज ऑलरेडी हैं कि आप बैंक की ईएमआई पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। इट विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज योर इनकम इज लेस एंड योर लाइबिलिटीज आर मोर, सो योर लोन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक।
नहीं, इवन बैंक तो अभी जो होम लोन है उसमें होम को अभी ये मैंने एनालाइज किया जाता है, अगर कस्टमर नहीं दे पाया तो वो मतलब ये करके सोल आउट करके वो कैसा ये आएगा, मतलब उसके ऊपर भी बहुत एनालाइज होता है, उसके बाद दिया यस जाता सर, है। वो जमीन का भाव देखता है, मार्केट में कितना चल रहा है। मार्केट कितना वैल्यू है, ये सब देख के भी दिया जाता है। बेटा सर, ये और सब चीजें क्रेडिट कार्ड शो ऑफ करने के लिए नहीं बनता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महीने के अंदर मुझे वो क्रेडिट चुका देना है। बिल्कुल, ये सब चीजें बैंक देखता क्यों है? अगेन ये जो वीडियो आपने देखा ना, इसकी वजह से। अगर मैंने एक हाउसिंग लोन आपको दे दिया विदाउट चेकिंग कि वो घर कहाँ है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू एक्चुअल लोकेशन के हिसाब से थी 20 लाख, लेकिन आपने कुछ फर्जी पेपर बना करके यू हैव शोन इट एज अ 40 लाख, और आपने उस 40 लाख के बेसिस पे 35 लाख का लोन मुझसे ले लिया। अब कल को अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं, आप लोन लेकर के मुझे वापस पे नहीं करते हैं, और मैं उस हाउस को, उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना लोन आपसे वापस लूंगा, और पता लगा उसकी वैल्यू तो 20 लाख ही थी, तो ये जो 15 लाख का डिफरेंस आया, ये कौन पे करेगा? अच्छा सर, ऐसा इंडियन बैंक के साथ हुआ है? आपने तो ये यूएस बैंक का बोला है, इंडियन बैंक के साथ ऐसा कुछ फर्जी और नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसके बाद चेंजेस हुआ है और भी? नो, इंडियन बैंक्स अच्छा। को शुरू से ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहने की आदत है। आरबीआई जब से बना, ऑपरेशनल हुआ आरबीआई 1949 से, जब भी हम लोग ने ये आरबीआई स्टार्ट किया, उसके बाद से कभी भी इंडियन बैंक्स में कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं हुआ। यस, एक बैंक ऐसा था जिसको आई फॉरगॉट द नेम, उसको पंजाब बैंक में मर्ज कर दिया गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड कोई बैंक डूबा हो। जब 2008 में दिस क्राइसिस हैज हैपेंड, अगर आप में से कोई 2008 में मतलब थोड़ा इतना समझदार रहा हो, जिसने इसके बारे में सुना हो, तो एट दैट टाइम मार्केट में एक ऐसे ही रूमर्स आ गए थे कि आईसीआईसीआई बैंक डूबने वाला है, and people have started taking their money out of the ICICI बैंक। जैसे अभी यस बैंक में तो प्रॉब्लम हुई, आई एम नॉट सेइंग यस बैंक में रूमर उड़े थे, उसमें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम थी और लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। फिर आपको पता है 50,000 की लिमिट इंपोज कर दी आरबीआई ने कि 50,000 से ज्यादा आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। यस बैंक के कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ था। उस टाइम पे 2008 में जब ये क्राइसिस हुआ, तो आईसीआईसीआई बैंक जो था वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, तो पता नहीं कहां से ये खबर आ गई कि साहब आईसीआईसीआई बैंक डूबने वाला है, अपना पैसा निकाल लीजिए निकाल लीजिए निकाल लीजिए बैंक के एम्प्लॉइज को। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद आईसीआईसीआई, सो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आई, बिकॉज व्हाटएवर कस्टमर वी यूज्ड टू अप्रोच, कस्टमर कहता था आप तो चोर हो, आप तो डूबने वाले हो, आप लोगों में हम पैसा क्यों लगाएं। these are the words which used to, I mean people used to tell us, but ऐसा नहीं था। So in India till now there is no bank, क्योंकि बैंक डूबने की जो सिचुएशन आती है ना बेटा, वो तब आती है जब बैंक को मनमानी करने का राइट दे दिया जाए, एंड इन इंडिया मनमानी करने का राइट नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट कि आप अपनी मर्जी से चाहे किसी भी तरह से कुछ भी कितना भी लोन किसी को प्रोवाइड करा दे, बिकॉज वी हैव सेट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना बेटा, सीआरआर, एसएलआर, यस सर। सुना है? रेपो रेट बढ़ गई, रेपो रेट कम हो गई। यस, चेतन ने तो बिल्कुल सुना होगा क्योंकि एमकॉम फाइनेंस है। बाकी लोगों ने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आज रेपो रेट इतना बढ़ा दिया, सीएलआर एसएलआर इतना, सीआरआर इतना हो गया, कैश रिजर्व रेशियो इतना हो गया एंड ऑल दैट। सो वो चीज इन नेक्स्ट क्लास हम लोग एक सीआरआर और एसएलआर इनके बारे में बात करेंगे, सो दैट जनरल बैंकिंग इंट्रोडक्शन अपना हो जाए कि क्या होता है और कितना परसेंट है, क्या है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो खुद भी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे आरबीआई लिखना है, आरबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी, उस वेबसाइट पे अलग से एक टैब दिया हुआ है रेट्स के नाम से, उस रेट में सारी चीजें विद डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि सीआरआर क्या होता है और कितना है, एसएलआर क्या होता है और कितना है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब। अदरवाइज विल हैव वन सेशन इन द नेक्स्ट क्लास फॉर दिस। सो आई होप ये 2008 के क्राइसिस के बारे में जो एक समराइज वीडियो आपको देखने को मिला, उससे कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिला होगा, एंड आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, आई होप सो। नो सर, एक बात पूछना था
सर यस आपने जो बताया ना कि 2008 में जो आईसीआईसीआई बैंक में जो प्रॉब्लम आया था, तब क्या आरबीआई ने कुछ हेल्प किया था या बिल्कुल। खुद आईसीआईसीआई आरबीआई बैंक? आरबीआई हैज स्टूड विद आईसीआईसीआई बैंक, वो बिल्कुल खड़ा हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, डोंट वरी, बट योर मनी। सर एट दैट टाइम तो कस्टमर को भी तो समझना होता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूमर है, क्योंकि एक बात फैलता वो बहुत ज्यादा है, छोटा सा बात इसी बात में। मतलब एक बार मैं समझा नहीं आपकी बात, रीजन सर कस्टमर्स। ये एक छोटा सा एक ड्यूमर अगर हो तो वो फैलता तो ज्यादा है ना मार्केट में, वो फाइनेंशियल हो तो वो तो और भी ज्यादा फैलता है। बिल्कुल, सी इंडिया, स्पेशली इंडियन मार्केट में क्या होता है बेटा, रूमर्स जो है वो बहुत जल्दी फैलते हैं। किसी भी बैंक के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है, सो वो एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज द प्रॉब्लम। बट वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब ये आईसीआई, आपने भी कहा आईसीआईसीआई में कोई प्रॉब्लम हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ आईसीआईसीआई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ओ ये सर, सिर्फ एक उसका रीजन मैं र्यूमर है। बताता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट उस टाइम पे अमेरिका में, जो इसमें अभी बैंक्स के नाम लिए गए, लीमन ब्रदर्स एंड ऑल, ये इतने बड़े नाम थे कि लोगों को लगा कि जब अमेरिका जैसी कंट्री में और इतने बड़े बैंक्स डूब गए, तो इंडिया तो बहुत छोटा है अमेरिका के कंपैरिजन में, और ये बैंक्स भी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो ये भी डूबेंगे। 2008 में स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह टूट गया था। सो इस वजह से लोगों के मन में एक डर बन गया कि ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स है ना, ये कभी भी मेरा पैसा लेकर भाग जाएंगे, कभी भी बंद हो सकते हैं, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई गई, अदरवाइज देयर वाज नो ओके सर। प्रॉब्लम। रही बात ओके सर, आरबीआई थैंक यू। की, आरबीआई ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, just like whenever a child is in problem, his parents or her parent will always stood with that, just like RBI will always stand with that, and RBI will give its 100% to save a particular bank. इसीलिए आज तक अभी तक कोई बैंक ऐसा डूबा नहीं, राइट? यस सर। राइट, एंड समवन इज आस्किंग अबाउट द लिंक, वेट आई विल शेयर द लिंक, मैं शेयर कर देता हूँ। Just give me 2 minutes. I'll share the link. Apart from this, any other problem? नो सर। Okay.
Yes, I have shared the link in the chat box. Whosoever wants to watch it again, they can watch, and we'll be discussing the other videos from there in the coming classes also. So एक मैथ्स प्रैक्टिस कर ले छोटी सी. Yes, anyone? I mean, am I audible or not? Yes, sir. I'm audible. चलो ठीक है. Now let's watch one small video, general video on attitude and perception or whatever it is. So let's watch it. बहुत छोटा सा वीडियो है. मुझे बताना आपको वॉइस आ रही है या नहीं. Let me start. It's only a 4-minute video. Dazzles and look at talent and say, wow. Let me share it. Is it visible? दिख रहा है आपको? Sir, it's true. Yes, sir. बता सकते हैं who is he? No, sir. No one knows. चलो ठीक है. Let's watch it. Dazzles and look at talent and say, wow, I wish Yes, I could sir. be like that. You find that Okay. So I'm just restarting it. dazzles and Watch look it. at talent and say, wow, I wish I could be like that. And yet you find that excellence is not about talent alone. In fact, a major part of excellence has nothing to do with talent. And in course of time, once you go beyond a certain level, ability or talent is the most useless virtue to possess. It's what you do with that talent that matters. And that's why he used a word, Mukesh used a word that I love, attitude. Beyond the point, it is attitude that counts for far more than talent. Because talent breeds an ego. And talent never solves problems beyond a point. And I was fascinated by something that Sandy Gordon said when we were doing a program together. Because I had seen a lot of young cricketers, extremely talented, who the moment they faced a roadblock did not know what to do. Because they had never had to struggle to succeed. They always used their talent to succeed. And Vinod Kambli is an example of that. The moment Courtney Walsh bounced him in Bombay, he was 22 years old. Was he? Yeah, he was 22 years old then. In 1994, he was 22 years old. Didn't know what to do. Did not play a test match after that. His last test match was when he was 22 years old. Just did not know how to play the bouncing ball because talent had solved everything for him before. In the Australian Army, when they are, and this is something that doesn't come from sport, but it's something a sports scientist told me, that when they're building an elite core team, they look at your career record, your track record, and if you've never failed, they don't pick you. They don't pick you because they say, if this man experiences failure, will he know what to do? They pick people who failed and bounced back. And that is where your attitude comes through. And I mean, let's look at excellence. What is excellence about? It's about being in the top 10% in your profession. I mean, I know I'm talking to people who want to be in the top 1%, but there are a lot of ordinary people around us around. So let's say top 10%. Can talent is talent important when you get to be in the top 10%? I mean, everybody in the top 10% will have the same talent, right? So what's your USP? It's what you do with the talent that counts. And unfortunately in our sport, and I think in India as a nation, we're dazzled by talent a great deal. I have found that beyond a certain time in sport, as indeed in broadcasting, that your work ethic and your attitude counts from far more than talent. I mean, Tendulkar is a prime example. The moment you say Tendulkar, if I asked you to, if you had one of those things that talk show hosts do, I'll give you a word and you give me a connecting word in one word. You say Tendulkar, you say talent, right?
He played 55 games as a 14-year-old without a break. 55 days. He'd practice for 2 hours, play a game, practice 2 hours, fall asleep on the dining table. And do that 55 days in a row. That's attitude. You know, we think, and this is something we talk about in our corporate lectures as well, where we advise against talent. When Tendulkar was born, it wasn't that this nurse picked him up and said, "Here, Mrs. Tendulkar, here's 70 hundreds for you." Yeah? It isn't Tendulkar's talent that's produced 70 hundreds. It's his work ethic, it's his attitude, and more than anything else, when he reaches the top, it's his passion to perform. And that counts for far more. The attitude and the passion counts for far, 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 far more than ability. Ability opens the first door. It might open the second door. It's not going to open the last door for you. Because the guy who's bowling the ball at you has got equal ability as you. He's not going to run up to bowl and say, "Oh, sorry, you're a genius. Sorry, I'll give you a simple ball." Which is what India's bowlers did in 1948 when they went to Australia. They were so much in awe that they said, "We are going to bowl to Bradman." It was understandable in those days. India. यस, समझ आया कुछ? कैन एनीवन समराइज कि क्या बात बोली गई? यस, सुष्मिता. Yes, sir. कैन यू बेटा, कैन यू समराइज, कुछ बता सकते हो क्या बताया इस वीडियो में? इस वीडियो में बताया है कि मतलब कोई भी काम करने के लिए आपके पास एबिलिटी होना चाहिए. एबिलिटी, ओके ओके. Ability to do work in time. ओके ओके. एनीवन एल्स? कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं? नो वन. अच्छा, ये वीडियो है किनका? कौन बोल रहे हैं माइक पे? कोई बताएगा आप में से? Who is he? Who is the person who is speaking in this video? I'm really surprised अगर किसी को भी नहीं पता who is he. Yes, Chetan. Who is this person? Anik, Soma, Deep Kumar. No one. I am really surprised to see this. अच्छा, क्रिकेट किस किस को पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट? नो वन. Sir, I. You play cricket, Anik? Yes, sir, play. Do you know सर who is मेरा पापा इसका वीडियो, ये आदमी का वीडियो मुझे दिखाया था, पर इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. You have seen this video earlier? सर नॉट दिस वीडियो, पर यही था. उसका एक दूसरा वीडियो था. He is Mr. Harsha Bogle, the worldwide famous cricket expert, cricket commentator. Right? He is IIM Ahmedabad alumni, and he is a cricket expert without playing a single. Without playing any international cricket. He has made his career in all this. So इस वीडियो में आपको मैं ये वीडियो आपको हर क्लास में दिखाऊंगा. It's a 3-minute video. In the next class we will again watch this video. Not an issue. In this video, just like Sushmita said, you should have ability. But in this video, it has said that after some time, your attitude and your work ethics are most important than your talent. Because talent तो क्रिकेट खेलने का सब में होता है. But why Sachin Tendulkar has become that successful?
टैलेंट तो सभी में है, टैलेंट वी सर नो दैट। क्योंकि उसका एबिलिटी था, उसका वो माइंड में यही सोचता था कि वो बड़ा होकर प्लेयर बनेगा। एबिलिटी नहीं बेटा, एटीट्यूड, यस कमिटमेंट, दैट। राइट। एबिलिटी वी ऑल हैव हर्ड दैट, अगर टेक्निक की बात करें देन मिस्टर विनोद कांबली वाज फार बेटर क्रिकेटर देन सचिन तेंदुलकर इफ वी टॉक अबाउट दी एबिलिटी एंड टैलेंट। बट इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया उसमें, इट इज योर एटीट्यूड एंड योर वर्क एथिक्स which actually create a difference, which makes a difference. So we should always work in a way that yes, our talent is there, but that talent should be converted into a positive attitude, into an attitude, and into a particular commitment that yes, I want to achieve this and I am going to achieve this. And after some point of time, your work ethics, your attitude towards your work will decide where you will end, where you are going to end in your career, and where you are going to reach, rather end where you are going to reach in your career, right? So by this video today, let's close this class over here. I hope it's kind of a learning class for you guys. In the next class we'll come up with something new. I'll try to come up with some banking terminologies, otherwise we'll do the data interpretation class in that particular class in the next week. Okay. Okay sir, thank you sir. Right, so I hope you all have got a good experience in this class, and please be regular. I am happy to see the regularity in the attendance. I am happy to see the people who are there in the last class, they are also there in that. So thank you so much for being regular.